Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is thermodynamics, and so far we had discussed a theory corresponding to the different thermodynamic process. On the last lecture, we had discussed about the isochoric process, isobaric process. I think we had discussed the adiabatic process as well, and we also had discussed the isothermal process. Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So at the last, I think we had discussed the work done by the iso, work done by the adiabatic process. Am I right, friends? Adiabatic. Yes, sir. So last में हमने क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस किया था. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. 24. So work done by the adiabatic process we had done with. Okay. So come to the next question, cyclic process. देखो, your content, uh, actually there are many thermodynamic process can be possible, but in your content, in your textbook only, 5 type of thermodynamic processes are discussed. Number one, isothermal process. चलो एक बार हम साथ में याद भी कर लेते हैं कि किसमें क्या फॉर्मूला था वर्क डन का. तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. सो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. हेत प्रजापति, हेत. Yes, sir. हाँ, थोड़ा ये मैं थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा देख लेना. Okay, sir. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. सो बिकॉज ऑफ दैट द चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, and because of that the change in internal energy is also zero, because for the gas internal energy can be given by F by 2 mu r delta T. If you remember, the internal energy of the gas can be given by F by 2 mu r T, and that will be discussed in the chapter number 13. तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो F by 2 mu r delta T होगा. बट आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाता है, वो डेल्टा T जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी का भी जीरो हो जाएगा. So because of that, according to the first law of thermodynamics, Q is equals to W plus delta U, but delta U becomes zero, and hence I can say Q will be exactly equals to the W. And we had derived the formula of the work done in the case of isothermal process. देखो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही है, ये सबका बाप है, याद है आपको? Yes, sir. Yes. So बाप तो सबका बाप है. और यहां पे हमने प्रूव किया था म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन भी लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो म्यू आर टी एल एन. बताएगा कोई मुझे? P1 by 1 by P2. P2. P1 Very by good. P2. तो ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था, राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. दूसरा वाला था आइसोकोरिक प्रोसेस. अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, डीवी जीरो हो जाएगा. मतलब अगर छोटा सा भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो देखो एक स्मॉल वर्क डन जो होता है ना वो डीडब्ल्यू पीडीवी होता है, बट अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वर्क डन जीरो हो जाएगा. So in this kind of circumstances, work done comes out to be zero. So according to the first law, W is equals to the first law. The equation of the first law is W equals to W, Q is equals to W plus delta U. तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि work done zero है आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो exchanged heat energy will be exactly equals to the change in kinetic energy and change in internal energy, and the change in internal energy can be given by F by 2 mu r delta T. आपको ये भी पता है कि F by 2 into R तो CV है, तो ये हो CV. जाएगा Mu Mu CVRT. CV delta T. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको लाजमी है ये म्यू सीवी डेल्टा टी आना चाहिए, लॉजिकली भी करेक्ट है. Yes, sir.
तीसरा जो प्रोसेस था वो था isobaric process. Last lecture was actually a very important lecture because almost all the process and the correspondent equation we had discussed. So that was a very actually important lecture. isobaric process में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है. So प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला PV is equals to mu RT, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यू कैन राइट अ P डेल्टा V is equals to mu R डेल्टा T, ये लिख सकते हो. और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था कि भाई वर्क डन का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पीडीवी में, अगर यहाँ पे देखो ये रहा, लुक एट दिस फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. तो अगर p को कांस्टेंट लेते हो तो p बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dv, तो मतलब p डेल्टा pv फ्रॉम v2 टू v1, तो p v2 माइनस v1 मतलब p डेल्टा v. तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो p डेल्टा v है. बट कभी-कभी ऐसा होगा कि यू विल नॉट बी गिवन द चेंज इन वॉल्यूम, you will be given a change in temperature. So you can also apply this formula as well because P delta V is equals to mu R delta T. You can apply this formula as well. तो ये भी अप्लाई कर सकते हो. और अगर यहाँ पे आप Q फाइंड करोगे ना, अगर यहाँ पे आप Q फाइंड करोगे ना, तो भैया यहाँ पे Q का, यहाँ पे एक्सचेंज हीट एनर्जी आपको क्या मिलेगा, तो कोई बताएगा मुझे क्या मिलेगा, याद है किसी को? mu Cp delta T. वेरी गुड, इट विल बी म्यू Cp डेल्टा टी. वर्क डन का फॉर्मूला है म्यू आर डेल्टा टी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है F/2 म्यू आर डेल्टा टी. तो कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड एक्सचेंज हीट एनर्जी. तो अगर आप म्यू आर डेल्टा टी कॉमन लेते हो ना, तो ये हो जाएगा F/2 + 1. अब आपको ये पता है कि म्यू आर डेल्टा टी तो वर्क डन है, तो द रिलेशन बिटवीन द एक्सचेंज्ड हीट एनर्जी and work done can be given by this formula for the isobaric process. And apart from that you can also write this is equals to mu Cp delta T, because ये F/2 + 1 into R जो है ना वो Cp है, तो ये mu Cp delta T भी हो जाएगा. So that is all about the isobaric process. Am I right, friends? Yes, sir. Apart from that, we had also discussed we also discussed adiabatic process. So adiabatic process में क्या होता है कि भाई सिस्टम एंड उसके सराउंड के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है. तो सिस्टम एंड सराउंड के बीच में कोई अगर हीट एक्सचेंज ही नहीं होता है, तो मतलब आपका अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ W + डेल्टा UB 0 हो जाएगा. तो मतलब आपका जो वर्क डन है ना वो हो जाएगा माइनस डेल्टा U, दैट इज माइनस F/2 म्यू R डेल्टा T, मतलब T2 - T1. तो आपका जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना वो हो जाएगा आपका F/2 म्यू R T1 - T2. And you can also convert this formula in this manner. देखो फ्रेंड्स, इसको मैं है ना इसके हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकता हूं. आपको पता होगा कि गामा क्या है भैया? Cp/Cv. F + 2 डिवाइड बाय Cp/Cv, दैट इज F + 2 डिवाइड बाय F होगा. वो Cp/Cv का रेशियो फाइंड करोगे तो यस और नो? Yes, sir. तो देखो मैंने लास्ट टाइम है ना एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था, बट दैट वाज द लेंथी मेथड. क्या मैंने शॉर्टकट मेथड सिखाया था आपको? नहीं. तो आज मैं ना आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा रहा हूं. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होता है, मतलब W + डेल्टा U 0 होगा, तो W हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा U, दैट इज माइनस F/2 म्यू R डेल्टा T, दैट इज T2 - T1. नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा F/2 म्यू R T2 - T1 का उल्टा, मतलब T1 - T2 हो जाएगा. तो यहाँ तक समझ में आया भैया? Yes, sir.
अब देखो ये जो Cp बाई Cv होता है वो F प्लस 2 डिवाइड बाई F होता है। Cp बाई Cv जो होगा आपका वो होगा आपका F प्लस 2 डिवाइड बाई F। Cp एंड Cv का अगर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो F प्लस 2 डिवाइड बाई F, तो कहना इसे गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाई F। तो अगर ये 2 बाई F को सब जगह इक्वेशन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? गामा -1 तो F बाई 2 को अगर सब जगह इक्वेशन बनाओ तो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन 1 अपॉन गामा माइनस। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? तो अब यहाँ पे जो F बाई 2 है उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन गामा -1। तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 लिख दो तो ये हो गया आपका आंसर। तो जो काम हमने बहुत सारे स्टेप लगाने के बाद प्रूव किया था वही चीज आप देख सकते हो। म्यू आर टी वन मतलब P1 V1 इज इक्वल टू म्यू आर टी वन, P2 V2 इक्वल टू म्यू आर टी टू। तो ये फॉर्मूला लाने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप, याद हो तो आपको किए थे। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. That can be proved very easily by this shortcut method। आया बात समझ में? Yes, sir. तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। एंड द लास्ट वन जो अभी ये सब रिवीजन हो गया ना लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी प्रोसेस डिस्कस किया था, हाँ लास्ट लेक्चर में हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि Cp जो होता है वो F बाई 2 प्लस 1 इंटू आर होता है। Cv जो होता है वो F बाई 2 आर होता है। एंड हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है। तो लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे थ्योरी हमने डिस्कस किया था और ये 4 प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। और ये शॉर्टकट मेथड जो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में ये नहीं लिख पाओगे, एग्जाम में आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना है, बट आपके समझ के लिए मैंने ये शॉर्टकट मेथड भी आपको सिखाया। यू गेट द सेम आंसर, यू कैन सी। ओके, अब एक प्रोसेस बाकी बचा, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, उसका मतलब क्या हुआ? तो नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि भाई साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई सिस्टम ने जहां से स्टार्ट किया होगा वहां पे वो वापस आ जाएगा। ओके, तो उसका डेफिनेशन ऐसा होगा कि इफ वी ब्रॉट अ सिस्टम फ्रॉम इट्स इनिशियल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट and by doing bringing it in the different thermodynamic state, and once again if the system brought into its original initial thermodynamic equilibrium state, then this process is said to be Cyclic process। मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां से अलग अलग प्रोसेस में जाके, अलग अलग स्टेट में जाके वहां पे उसी जगह पे अगर वापस लाते हैं सिस्टम को तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों इक्वल होगी। Equal. वो दोनों सेम ही हो जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल। अब जो इंटरनल एनर्जी है ना वो स्टेट फंक्शन है, वो अगर स्टेट चेंज होगा तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ पे तो साइक्लिक प्रोसेस में भैया इनिशियल एंड फाइनल स्टेट तो सेम ही है। तो व्हाट शुड बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? Zero. Zero. बिकॉज इंटरनल एनर्जी तो आपको Zero. पता है कि हाँ इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी तो ही चेंज होगा कि अगर स्टेट चेंज होगा, बट साइक्लिक प्रोसेस में तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों सेम ही है, तो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जो होगा वो एक्सचेंज्ड हीट जितना ही हो जाएगा। So in the case of cyclic process, exchanged heat energy that will be exactly equals to the work done. Is that clear, friends? Yes, sir. तो फ्रेंड्स Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। ये बहुत ही मतलब सारे इक्वेशन मैंने इसे यहाँ पे पांचों प्रोसेस के सारे इक्वेशन मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। Is that clear? Yes, sir. Sir. बोलो बोलो बोलो। ये इक्वेशंस में F क्या है? हाँ तो हित बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हित कौन बोल रहा है? किसने Yes, पूछा? sir. हाँ, इट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ना? तो वो आप Yes, sir. यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 में। ओके,
तो एक यहाँ पे भी ये भी चैप्टर नंबर Okay, 13 में sir. आने वाला है। ये जो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, F/2 म्यू आर टी, वो भी चैप्टर नंबर 13 में आने वाला है। ओके ओके। Okay, sir. और एक चीज बताऊं मैं आपको, चलो बोलेगा अर्गम, अर्गम बोलो, मोनो एटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू क्या होता है? अर्गम, चलो रुजू बता दो, रुजू, मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ का वैल्यू क्या होता है? भाविक बोलो, आप बोलो। 3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए। 3 होता है। एंड अगर डाई एटॉमिक है, उसमें and 2 Five. रिजिड rotator है, रोटेटर और 2 होता है हाँ अगर रिजिड रोटेटर है तो डाई तो एटॉमिक के लिए 5 क्या आएगा? 5 आएगा। हाँ अगर वो रिजिड रोटेटर है तो उसके लिए 5 आएगा। एंड अगर विथ विथ वाइब्रेशन है वाइब्रेशन 7। तो 7. 7। वेरी गुड। तो अगर विथ वाइब्रेशन है तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 7। तो अभी ये सब जो चीज है ना वो 13 चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी इतना आपको याद रखना है। ओके ओके। तो ये पूरा जो फॉर्मुलेशन है वो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, सारा यहाँ पे आ गया। साइक्लिक प्रोसेस का भी डिस्कशन हो गया। एक और चीज मुझे आपको समझाना है, एक और चीज मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट नोट, ये जो मैं स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूं ना वो आपके जो नोट्स है ना उसके सामने के साइड ब्लैंक पेजेस होते हैं, राइट? ये सब नो? यस सर। यस सर। तो ये पूरा चार्ट एक बार लिख देना, तो आपके लिए मतलब रिवीजन करने में, इक्वेशन याद रखने में अच्छा रहेगा आपके लिए। यस सर। ओके, कंपलसरी ये काम कर देना ना। नोट नंबर 1, वर्क डन फॉर एनी thermodynamic process can be given by, चलो वो आपको पता है कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन पीडीवी। वेरी गुड, इंटीग्रेशन v1 to v2, v initial to v final, pdv। बट याद करो चैप्टर नंबर 6, अगर आपको याद आ रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला भी ऐसा ही कुछ था, सॉरी वर्क का फॉर्मूला फोर्स के फॉर्म में भी ऐसा ही कुछ था, याद है? x1 to x2 f dx ऐसा कुछ था। यस सर। यस सर। और इसके बाद हमने ऐसा एक थ्योरी पढ़ा था कि भाई इसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ वी फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द f वर्सेस x ग्राफ, देन इट विल गिव यू द वर्क डन। याद है? यस सर। यस यस सर। सो यहां पे भी हम ऐसा आर्ग्यू कर सकते हैं कि वर्क डन कैन ऑल्सो फाउंड बाय, अब यहाँ पे f वर्सेस x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। हाँ, बाय फाइंडिंग द एरिया enclosed by P versus V graph and volume axis। तो ये वॉल्यूम एक्सिस एंड P वर्सेस V ग्राफ के बीच में जो एरिया एंक्लोज होगा वही आपका वर्क डन है। बाय एग्जांपल, मान लो कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए आपको ग्राफ दिया हुआ है, मान लो कि आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है,
यहाँ पे आपका इनिशियल वॉल्यूम है भैया, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, और ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है मान लो। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क फाइंड करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये P वर्सेस V का जो ग्राफ है उसका वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया एंक्लोज हो रहा है वो फाइंड करना चाहिए। तो ये जो एरिया आपको मिलेगा ना, दिस एरिया, सो दिस एरिया विल एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क। वर्क डन। आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. yes इफ sir, हाँ, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, जैसे यहाँ पे प्रोसेस के दौरान देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो याद रखना है कि आपको वर्क पॉजिटिव लेना है। बट अगर कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे तो मैंने इंक्रीज करके दिया है, V1 से ज्यादा V2 का वैल्यू है, वॉल्यूम को मैंने इंक्रीज किया है, मतलब एक्सपांशन किया है। बट अगर कंप्रेशन करते हो तो कंप्रेशन क्या होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। तो आपको पता है कि फिजिक्स में ऑन द सिस्टम वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। अरे यार, फिजिक्स में क्या होता है? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो अगर कंप्रेशन होता है ना तो नेगेटिव करना है। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. yes sir, चलो, अब इम्पोर्टेंट नोट नंबर 2। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, for cyclic process, work can be found by area enclosed by only that cyclic process। तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस की जरूरत नहीं है आपको। साइक्लिक अगर कोई प्रोसेस हो रही है और वर्क फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, उसी साइक्लिक प्रोसेस का ही एरिया फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन है कि क्या बोल क्या रहे हो आप, तो मैं बताऊं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, मान लो कि ये वाला कोई साइक्लिक प्रोसेस है। कोई सिस्टम को हम A to B, देन B to C एंड देन C to A पे ले जाते हैं। तो अगर ये प्रोसेस का पूरा वर्क फाइंड करना है तो आपको क्या करना है भैया, वॉल्यूम एक्स को देखना नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, ये साइक्लिक प्रोसेस का ही एरिया फाइंड करना है। और वो जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा, Work done. ये साइक्लिक प्रोसेस का नेट वर्क डन होगा। और एक चीज याद रखना है आपको कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है साइक्लिक प्रोसेस तो आपका ये जो वर्क डन है ना वो आपको नेगेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या साइक्लिक प्रोसेस या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये साइक्लिक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या आपको, ये इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं क्या? Anti-clockwise. ये ऐसे जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे आपका ये Anti-clockwise। पर्टिकुलरली ये जो Anti-clock। हाँ, मैंने ये जो ग्राफ दिया है तो ये पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वर्क डन आपका कैसा मिलेगा, नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। चलो, तो ये दो चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. आपको ये कंपलसरी क्या करना है, Note आपको down. नोट डाउन कर लेना है। इज दैट Left क्लियर? blank ये बहुत ही pages। काम की चीज है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत ही काम आएगा। ओके Yes, sir. तो फ्रेंड्स, हमने साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस कर लिया। अब हम हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर के डिस्कशन करेंगे
बट वैसे ये दोनों टॉपिक आपके अभी के एग्जाम्स के लिए कैंसल्ड है, बट हमको लास्ट में क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी है यहाँ पे, और उसके बाद हमको करना है एक कार्नोट इंजन भी पढ़ना है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ एंड कार्नोट इंजन तो ही हम पढ़ पाएंगे कि अगर उसका ये हीट इंजन के फंडामेंटल हमारे क्लियर हो। तो मुझे ये थ्योरी चलाना ही पड़ेगा, भले ही कैंसल है। आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है। ओके यस सर। Yes, sir. तो अभी के लिए मैं है ना एक क्वेश्चन टेम्पररी स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है ना वो टेम्पररी स्किप कर रहा हूँ। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे उसको। बट अभी मेरा जो टारगेट है वो हीट इंजन को पढ़ाना है। तो भैया हीट इंजन क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो भैया हीट इंजन ऐसी चीज है कि जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगी बाय द हेल्प ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस। द डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी बाय द यूज ऑफ अ सम साइक्लिक प्रोसेस, तो उसको हीट इंजन बोलते हैं। जैसे हमारे जो व्हीकल है तो वहां पे भी वही चीज होती है। तो वहां पे क्या होता है कि फ्यूल का कंबशन होता है। जैसे पेट्रोल या डीजल आप डलवाते हो तो वहां पे अंदर की साइड फ्यूल का कंबशन होगा, तो मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट प्रोड्यूस होकर क्या करेगी, वो हमारे व्हीकल को रोटेट कराएगी, वो व्हीकल के व्हील्स को रोटेट कराएगी। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या हुआ भैया, हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जेशन ही तो हुआ। तो हमारे व्हीकल के अंदर जैसे स्कूटर है, कार है, वो सारे व्हीकल के अंदर जो इंजन होता है उसको हीट इंजन ही बोल सकते हैं। दो टाइप के हीट इंजन पॉसिबल है, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जहां पे आपको फ्यूल को बाहर से डालना होता है उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। लाइक आपको पता है कि स्टीम इंजन, तो शायद पुराने पिक्चर अगर आपने देखे हो तो रेलवे के अंदर बाहर से वो कोल को डाल के इंजन चलाते हैं। देखा कभी आपने गदर देखा, गदर एक टाइप Yes, का sir. यस सर। तो Yes, जहाँ पे sir. कंबशन बाहर की साइड होता है तो उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं, जहाँ पे फ्यूल का कंबशन बाहर से होता है। और हमारे जो व्हीकल के अंदर जो होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन है, जहाँ पे कंबशन हमको दिख नहीं रहा है, अंदर की साइड होता है। तो कार स्कूटर के इंजन जो होते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। तो हीट इंजन क्या है वो आपको पता चला। अब उसको कैसे, एक सिंपल देखो, अलग अलग टाइप के हीट इंजन में अलग अलग टाइप के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3। बट एक सिंपल सा हीट इंजन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको हमारे नोट्स पे, देखो। तो एक सिंपल सा हीट इंजन है, उसमें ऐसे वर्किंग सब्सटेंस जो है ना वो गैस है, गैस इज अ वर्किंग सब्सटेंस, दिख रहा है आपको। यस सर। तो ये जो गैस है वो वर्किंग सब्सटेंस है। यहाँ पे देखो तीन चीज होती है, वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स एंड सिंक। ये तीन चीज कोई भी इंजन में होता ही होता है। कौन सा तीन चीज मैंने बोला, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स एंड सिंक, ये तीन चीज होती है। तो ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, वो गैस है। ये बर्नर जो है वो सोर्स है, जहां से इंजन, जहां से ये वर्किंग सब्सटेंस हीट लेगा। तो ये हीट लेगा तो क्या होगा उसका, तो इसका क्या होगा, गैस का एक्सपांशन होगा। यस और नो, होगा कि नहीं यस होगा। सर। Expand. तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है कि जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये जो व्हील है ना वो फरेगा। आपने कभी रेलवे देखा, रेलवे चलता हुआ रेलवे देखा, तो वहां पे क्या होता है आपको पता होगा कि उसके जो दो व्हील्स होते हैं ना उसके बीच में एक रोड होता है। तो रोड आगे Yes. पीछे होता है, रोड जो है ना वो आगे पीछे होता है, बट व्हील फरते हैं। तो एक टाइप का मैकेनिकल सिस्टम होता है कि ये जो रोड है वो भले ही ऊपर जाएगा बट यहाँ पे व्हील जो है वो फरेगा, यहाँ पे। इज दैट क्लियर। यस। तो जैसे 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 ये पिस्टन ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये व्हील का रोटेशन होगा। बट
एक चीज ऐसी है कि पिस्टन यहाँ पे एक सिंक है, सिंक मतलब एक टाइप का होल है, तो जैसे ही पिस्टन उसके ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही गैस बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या होगा पिस्टन का, गैस का कंप्रेशन होगा। हाँ, तो मतलब पिस्टन क्या होगा, अब नीचे आएगा। नीचे आएगा। तो जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो आधा व्हील है ना, वो आधा रोटेशन करेगा। अब जब व्हील वापस से ये पिस्टन नीचे आएगा तो आधा रोटेशन उसके बाद में कंप्लीट होगा। तो मतलब पिस्टन ऊपर नीचे होता रहेगा और व्हील रोटेट होता रहेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? यस ये यस सर। मोटर जैसा ही हुआ ना सर। क्या बोल रहे हो? रेलवे जैसा ही हुआ ना। वही है, मैकेनिकल सिस्टम तो वही है, मैकेनिकल सिस्टम वही है, बट समझना ये है, आपको यहाँ पे समझना क्या है, हमने क्या प्रोवाइड किया था यहाँ पे, तो बोले गैस को हीट प्रोवाइड किया था, बट मिला क्या हमको, तो बोले जो व्हील है वो रोटेट हो रहा है, तो मतलब कौन सा एनर्जी मिला हमको, तो बोले मैकेनिकल एनर्जी मिला, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी मिला। तो हमने दिया था क्या, तो बोले हीट दिया था, मिला क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो वही तो बात है कि ये कर क्या रहा है, तो बोले हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? सर वो फिर से समझाओ ना सर, वो होल होता है फिर उधर से हाँ देखो नीचे मेरी आता बात, है और वो हाँ मेरी बात सुनो, पहले से स्टार्ट करते हैं। ये आपका बर्नर दिख रहा है आपको, यस सर। तो ये बर्नर के द्वारा गैस को हीट मिलेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट गैस का क्या होगा, एक्सपांशन होगा, तो मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा, यस सर। तो वो व्हील को रोटेट करेगा। अब पिस्टन ऊपर जाते 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 ये जो होल है उसके ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा सोचो। अगर इसके भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे तो एक गैप है, होल है, तो अगर पिस्टन इससे भी ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या होगा सोचो। उधर से गैस बाहर निकल जाएगी। तो गैस वहां से बाहर निकल जाएगा, तो अब पिस्टन क्या करेगा, Compressed. वापस से नीचे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब फिर वापस से क्या होता है, यहाँ पे वापस से कहीं से इनपुट डालना होता है, यहाँ पे कहीं पे वापस इनपुट भी होता है। जैसे पेट्रोल का कंबशन, यहाँ मान लो कि ये पेट्रोल का यहाँ पे कंबशन, यहाँ पे पेट्रोल का कंबशन होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, तो एक बार वो गैस बाहर निकल गया तो दूसरा गैस यहाँ पे आएगा, वापस से वो एक्सपांड होगा, वापस से बाहर निकलेगा, कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहेगा। आया बात समझ में? यस सर। तो पिस्टन ऊपर नीचे होता रहेगा, बट व्हील क्या करेगा, रोटेट होता है। तो हमने क्या किया, तो बोले गैस को हमने हीट एनर्जी दिया, बट उसका हो गया कन्वर्जेशन मैकेनिकल वर्क में। आया बात समझ में? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर जो गैस बाहर निकला उसको वो तो एटमोस्फियर वापस में अंदर गया। डाल सकते हैं ना एक्सपांड के लिए। नहीं, उसमें क्या होता है कि जब व्हीकल चलता है तो जो धुआं निकलता है तो वो वापस से आप उसको इंजन को अंदर डालने का नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ये वो चीज है सिंक मतलब, यस सर। वो जो धुआं निकलता है ना हमारे व्हीकल्स में से, वो ये चीज है। हाँ यस सर। अंडरस्टूड? ओके। तो यहाँ यस पे सर। तीन चीज होती है, वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स एंड सिंक। ये तीन चीज के द्वारा पूरा सिस्टम हम बना सकते हैं। तो एक सिंपल सा हीट इंजन है, इसका फंक्शन इतना भी सिंपल नहीं होता है, बट ये तो आपको समझने के लिए, समझाने के लिए एक सिंपल, देखो लिखा हुआ है सिंपल सा हीट इंजन आपको दिया हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सिंपल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, यस सर। देखो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। हीट इंजन इज अ डिवाइस by which a system is made to undergo a cyclic process that results in the conservation of heat into the work. So in the simple language, the device by which we can convert the heat into the work by the help of the cyclic process is called the heat engine. यहाँ पे साइकिल खत्म हुआ है, क्यों खत्म हुआ? बिकॉज पिस्टन ऊपर गया और फिर बाद में नीचे आ गया, मतलब उसका एक साइकिल खत्म हुआ। आया बात समझ में? यस सर। A simple heat engine is shown in figure. A gas enclosed in the cylinder with a piston receives the heat from the burner. On absorbing heat energy, the gas expands and pushes the piston upward so that wheel starts rotating. To continue the rotation,
of the wheel, an arrangement is necessary to heat engine in the heat engine so that the piston can move up and down. मतलब सिंक की बात कर रहा है, तो सिंक अगर यूज करेंगे तो वो अप डाउन हो जाएगा. गैस इज कॉल्ड द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द इंजन. mechanism of a conversion of the heat into the work varies for the different heat engine. मैंने बताया ना कि different heat engine में different टाइप के stages होते हैं. हीट इंजन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन सच एज स्टीम इंजन, स्टीम का स्पेलिंग रॉन्ग है, देख लेना आप, एंड इंटरनल कंबशन इंजन सच एज डीजल का भी रॉन्ग है, डीजल पेट्रोल गैस इंजन. ओके, तो ये स्टीम इंजन के टाइप है. अब मुझे इसका स्कीमेटिक वर्किंग डायग्राम बनाना, मुझे इसके वर्किंग का स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है और उसके एफिशिएंसी का फॉर्मुलेशंस करना है. सर वो जो हीट इंजन का था, वो उसमें व्हील कोई भी बाजू घूम सकता है ना, कि कोई नहीं, वो पर्टिकुलर मैकेनिकल सिस्टम कैसे सेट किया है उसके हिसाब से है, मैकेनिकल सिस्टम कैसे अरेंजमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से, बट घूमेगा तो एक ही डायरेक्शन में. अदरवाइज तो क्या होगा कि व्हीकल कभी आगे जाएगा, कभी वापस पीछे आ जाएगा. समझते हो? हाँ सर, पता चलता है. हाँ, तो ये सिलेबस से रिड्यूस्ड है ना. देखो ये टॉपिक वैसे कैंसिल है, बट आगे के टॉपिक को समझने के लिए ये समझना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको खाली समझना है, प्रिपेयर नहीं करना है. ओके, समझना है आपको. ओके ओके सर. अब हीट इंजन का मुझे उसके वर्किंग का स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है. तो ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है गैस, ये वर्किंग सब्सटेंस है हमारा गैस है. तो वो क्या कर रहा है भैया, तो बोले हाई टेम्परेचर पे जो रिजर्वियर है, हाई टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे जो रिजर्वियर है जैसे सोर्स है, तो वहां से वो Q1 अमाउंट ऑफ द एनर्जी गेन कर रहा है, और वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी जो है वो सिंक में लॉस करेगा. लो टेम्परेचर रिजर्वियर सिंक जो होता है उसमें T2 टेम्परेचर पे जो सिंक है, लो टेम्परेचर रिजर्वियर, हाई टेम्परेचर सोर्स में से Q1 एनर्जी लिया, Q2 का लॉस्ट किया, बट कुछ वर्क भी वो कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस, तो हमको वो वर्क भी देगा. तो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी साइकिल खत्म हो रही है. तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, द एक्सचेंज्ड हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. बट साइक्लिक प्रोसेस में अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है, जीरो, बिकॉज इसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट तो सेम ही हो रहा है. तो एक्सचेंज्ड हीट एनर्जी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन. एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. अब मुझे थोड़ा सोच के बताना, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है उसने मान लो कि 100 जूल एनर्जी सोर्स में से लिया और उसने 70 जूल सिंक में उसने रिलीज कर दिया. तो व्हाट इज द नेट अमाउंट द हीट एक्सचेंज्ड? 30 जूल. उसने 100 एब्जॉर्ब किया, 70 को लॉस कर दिया. तो व्हाट इज द एक्सचेंज्ड ऑफ द हीट, नेट अमाउंट द एक्सचेंज हीट? 30 जूल. 30, मतलब आपने किया क्या वो 30 लाने के लिए? Q1 minus Q2. परफेक्ट. तो वही मैं बता रहा हूं कि नेट एक्सचेंज ऑफ द हीट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू Q1 minus Q2. तो Q के बदले क्या लिख सकते हैं भैया? Q1 minus Q2. चलो ये समझ में आया भैया? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. अब मुझे ये Yes, बताओ, अब हमारा जो टारगेट है वो एफिशिएंसी फाइंड करना है. तो कोई भी सिस्टम का एफिशिएंसी हमको कैसे मिलेगा? Output work वेरी गुड. आउटपुट upon input work. इनपुट. हाँ, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज ऑलवेज द एफिशिएंसी. अब सोचो कि ये जो हमारा हीट इंजन है उसका आउटपुट क्या है और उसका इनपुट क्या है? 13 आउटपुट है. नहीं, 13 बटन भूल जाओ. मेन इसका काम क्या है? तो बोले हम हीट प्रोवाइड करेंगे और वो वर्क करेगा. तो आउटपुट क्या है हमारे लिए? वर्क डन. एंड इनपुट क्या है? जो हमने सोर्स में से दिया वो. तो इज दैट क्लियर अंडरस्टूड फ्रेंड्स? आउटपुट जो है वो वर्क है, इनपुट जो है जो हमने सोर्स में से जो दिया वो हमारा इनपुट है. इज दैट क्लियर? यस सर. बट अभी हमने डिस्कस किया कि W तो क्या है भैया? Q1 minus Q2.
अपॉन Q1 W का वैल्यू लिखा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. So can I say it is a 1 minus Q2 by Q1? Yes, sir. Yes, sir. So this is the formula you have to remember. हम जब कार्नोट इंजन डिस्कस करेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो कार्नोट इंजन आपके सिलेबस में है बट हीट इंजन नहीं है। अब सोचो हीट इंजन बेसिक है और उसका एक स्पेशल टाइप कार्नोट इंजन है। अब बोले उन लोगों ने हीट इंजन को कैंसिल किया है बट कार्नोट इंजन को रखा है, तो ये कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही कैसे है? तो ये करना ही पड़ेगा आपको, मतलब ये समझना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि अगर आपको सोर्स का एनर्जी पता है, सोर्स का एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी पता है, सिंक में कितना रिलीज हो रहा है वो पता है, तो 1 माइनस Q2 by Q1 करोगे आप तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. अब सोचो कि आपको एफिशिएंसी 1 करना है। 1 का मतलब पता है क्या होता है? 1 का मतलब 100% होता है। तो ऐसा आपको इंजन बनाना है कि जिसका एफिशिएंसी 100% हो। तो उसके लिए आपको Q2 का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? 0. 0 मतलब सिंक में आप कुछ भी ना लॉस करो तो काम हो जाएगा। बट अभी तक ऐसा कोई इंजन नहीं है हीट इंजन कि जिसमें सिंक में आप कुछ भी लॉस ना करो तो भी वो काम करता रहेगा। ऐसा अभी तक तो कोई इंजन बना नहीं है कि जिसमें पेट्रोल का कंबशन होता है, डीजल का कंबशन होता है बट कोई धुआं नहीं निकलता है, गैस का कंबशन होता है बट कोई धुआं नहीं निकलता है। ऐसा कोई इंजन है ही नहीं। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अगर आपको 100% एफिशिएंट हीट इंजन बनाना है तो आपको Q2 का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। बट ऐसा अभी तक कोई इंजन पॉसिबल नहीं हुआ है कि जिसमें सिंक के अंदर कुछ भी लॉस किए बिना जो भी हम एनर्जी सोर्स में से प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 100% वर्क में कन्वर्सेशन हो जाए। ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। इसी को थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बोलते हैं। आया बात समझ में? Yes, sir. सर जो इंजन्स का मैकेनिज्म होता है वो यही प्रिंसिपल पे होता है ना? सारे हीट इंजन, चाहे आपके स्कूटर है, चाहे आपके कार है, चाहे रेलवे इंजन है, तो जितने भी कंबशन इंजन है वो सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं भैया। ओके ओके। Yes, sir. मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या है? आइडियल हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, इन सिंपल लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक फॉर्मुलेशन समझाने के लिए मैंने पूरा डिस्कशन किया। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो वही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है कि भाई ये पहले स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक रॉन्ग कर दिया है, ये एरो नीचे की साइड है, एरो गलत दिखा दिया है। एरो नीचे की साइड नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा? इट इज नॉट द वर्क ऊपर की डन। साइड. हाँ वर्क डन। ये देखो, ये हम इंजन के ऊपर वर्क कर रहे हैं या इंजन खुद वर्क कर रहा है हमारे ऊपर? तो हम कोई इंजन के इंजन ऊपर वर्क खुद नहीं वर्क तैयार कर रहा है, इंजन वर्क कर रहा है ना। इंजन कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी को वर्क में। तो अगर आपके पास नोट्स हो तो ये एरो को थोड़ा उल्टा कर दीजिएगा। ओके हाँ बोलो, सर 28 वाला है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? 28 वाला है सर। हाँ अच्छा ओके 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 फाइन। तो कोई मिस्टेक नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। हाँ वो जो था वो तो रेफ्रिजरेटर का था, तो उसमें तो बराबर है। रेफ्रिजरेटर में तो उल्टा ही होता है, रेफ्रिजरेटर में हमको वर्क करना होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने स्कीमेटिक डायग्राम देख लिया था 29 का, वो तो अलग चीज है, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, वो अलग है, बराबर है। तो हीट इंजन में बराबर है, आप देख सकते हो कि एरो ऊपर की साइड ही है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, फिर W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 लिखा हुआ है,
एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, आपने अभी हमने डिस्कस किया कि आउटपुट अपन इनपुट मतलब नेट वर्क डन अपन नेट हीट एब्जॉर्ब्ड, तो ये हो गया 1 माइनस Q2 बाई Q1। और फिर बाद में ये भी डिस्कस कर लिया है कि अगर आपको 100% एफिशिएंट इंजन चाहिए तो आपको Q2 जीरो करना पड़ेगा, बट ये बैक्स में मैंने लिखा हुआ है कि अभी तक ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है, और इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। इज दैट क्लियर? यस इज नेवर पॉसिबल। है बात समझ में? यस सर। यस सर। तो अब जाके हम कार्नोट इंजन को पढ़ पाएंगे, हम थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को भी अब हम डिस्कस कर पाएंगे, बट वो करना है उसके पहले हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। चलो, क्या आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 1 दिख रहा है आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? यस सर। न्यूमेरिकल के नोट्स, फिजिकल नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये वाला नोट्स मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल के साथ पूरा पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा हूँ। ओके, आपके पास जो नोट्स होगा उसमें जस्ट थ्योरी होगा, है ना? यस तो न्यूमेरिकल के सेंड कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। A geyser hits a water flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 to 77। देखो ये वाटर जो है ना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाउ मच द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर? बताओ मुझे, चलो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, बोलो क्या लिखूं मैं? आपको पता है भैया? बोलो, हीट के फॉर्मूला तो पता है ना आपको? बताओ क्या लिखूं? MC डेल्टा T। MC डेल्टा T। MC डेल्टा T, वेरी गुड। बट यहाँ पे आपको मास तो दिया है, लीटर मतलब वॉल्यूम तो दिया है, बट क्या दिया है? पर मिनट। तो ये हीट भी आपको जो लगेगा वो क्या होगा? पर मिनट। पर मिनट होगा। इज दैट क्लियर? यस। अब मुझे मास फाइंड करना है। बात ऐसी है कि मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है भैया? 3 लीटर। 3 लीटर। आपको शायद पता होगा कि 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। जब 1000 लीटर कंबाइंड होता है ना तो 1 मीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। अब मुझे तो मास चाहिए भैया, तो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हाँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा। यस सर। यस सर। अब पानी का जो डेंसिटी होता है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम 3 × 10⁻³ तो फिर आपका आंसर आएगा 3 kg। बट फ्रेंड्स रिमेंबर, दिस इज नॉट जस्ट अ मास, इट इज अ मास पर मिनट, बिकॉज ये वॉल्यूम भी पर मिनट है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब करेंगे हम यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट। मास जो है वो 3 kg पर मिनट है। स्पेसिफिक हीट वाटर का क्या होता है? तो 4200 वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, एंड दैट इज इक्वल टू 4.2 10⁻³ जूल पर केजी सेल्सियस। तो ये देना चाहिए आपको, एक्चुअली देना पड़ेगा, ये मान लो कि दिया हुआ है। देखो तो सॉल्यूशन में देखो तो 4186 लिखा हुआ है, 4200 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 4186 लिखा है या 4200? हमारे पास नोट्स नहीं है ना नोट्स सर। नहीं दिए आपने। अरे हाँ, तो लिखा है 4.2 10⁻³ बराबर है, तो ये 4.2 10⁻³ बराबर है इनटू डेल्टा टी। व्हाट इज द चेंज इन टेंपरेचर? 77 50। मतलब 50 आए। मतलब 50। सर 4.2 लेना है ना 10⁻³। हाँ, 4.2 10⁻³ का मतलब क्या हुआ? 4200 बराबर। हाँ यस।
ओके, तो ये आपका हो जाएगा 15 क्रॉस 42 क्रॉस 10⁻³ इट इज नॉट अ जूल, इट इज जूल पर मिनट। तो इतना एनर्जी आपको चाहिए। चलो अब क्वेश्चन क्या है, तो ये कहाँ से मिलेगा ये एनर्जी, कहीं से तो मिलेगा ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये एनर्जी कहीं से तो आएगा, तो कहाँ से आएगा? इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, what is the rate of the consumption of the fuel if its heat of combustion is 4 into 10⁻⁴ joule per gram? मतलब अगर 1 ग्राम है ना, तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? 1 ग्राम गैस कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? 4 into 10⁴ 4 जूल। तो 1 kg के बारे में सोचो, अगर 1 kg के बारे में, तो हाउ मच द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द 1 kg? 4 into 10⁻⁷ 7 जूल। तो मान लो कि 1, आपको क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ कंजम्पशन। तो रेट ऑफ द कंजम्पशन मतलब कितना मास पर यूनिट टाइम, आपको मास पर यूनिट टाइम मतलब पर मिनट कितना मास कंज्यूम हो रहा है वो फाइंड करना है। तो अज्यूम करते हैं लेट m kg mass of gas is consumed in 1 minute। देखो हमने पर मिनट ही हमको सॉल्व करना है, तो हम पर मिनट ही कंसीडर करेंगे। तो अगर m kg मास कंज्यूम हो रहा है, तो अगर 1 kg के द्वारा इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, तो m kg के द्वारा कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा? तो कितना होगा भैया? m into 4 into 10⁻⁷. It is joule per minute now, because this is the m per minute, it is a mass per minute. Is that clear? यस सर। तो ये गैस के द्वारा प्रोड्यूस हुआ, मिला किसको? वाटर को। तो अब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं भैया, Yes sir. एंड दोनों के यूनिट भी सेम ही है, जूल पर मिनट। तो ये गैस के कंजम्पशन से प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो प्रोड्यूस हुआ वही तो मिला होगा ना वाटर को, जो प्रोड्यूस हुआ होगा गैस के कंजम्पशन से वही तो मिला होगा। तो कंपेयरिंग देम, तो 15 into 42 into 10⁻³ इज इक्वल्स टू m into 4 into 10⁻⁷, दोनों को कंपेयर कर दिया तो आपका मास मिल जाएगा आपको। एक बार कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो कर लो ना, 15 into 42 divided by 4, 10⁻³ 10⁻⁷ 10⁻⁻4 बचेगा। क्या आ रहा है देखो तो, 1 लाउडली बोलो ना आप। 157.5. 157.5 ओके। तो इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं 15.75 10⁻⁻³ kg। तो 10⁻⁻³ kg का मतलब ग्राम हो जाएगा, एंड दिट इज नॉट जस्ट अ ग्राम, इट इज अ ग्राम पर मिनट। वही तो मुझे फाइंड करना था, वही तो मुझे रेट फाइंड करना था। आया बात समझ में? तो दिस शुड बी द आंसर। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो 4th चैप्टर 11 चैप्टर में ही होना चाहिए, ये 12th का चैप्टर का नहीं है, 11 चैप्टर में ही इस टाइप के कांसेप्ट को डिस्कस किया है। बट समझ में आया आपको? यस सर। Yes sir. तो आंसर शुड बी, या इट इज द सेम आंसर वी आर एबल टू गेट। इज दैट क्लियर? तो करना बहुत सिंपल है Yeah. कि भाई पहले कितना हीट वाटर को चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं पर मिनट, और कितना गैस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। दैट्स इट। आया बात समझ में आए? इज इट ओके? Yes sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2। सर हमारी चिराग वोरा में एग्जाम है। Okay, let me complete this numerical. We're going to complete within 2 minutes. Okay, just 2 minutes. Okay, तो 2 मिनट लगेगा। What amount of the heat must be supplied to a 2 into 10⁻⁻² kg nitrogen gas to raise the temperature by 45 Celsius
at the constant pressure friends, constant pressure. तो याद करो, for constant pressure what was the formula for the heat mu energy? Cp delta T. Very good, very good. तो क्या it is a mu Cp delta T? Am I right friends? अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आप ये चीज कर सकते हो, टोटल मास अपन उसका मोलिकुलर मास, यस और नो? Yes sir. एंड Cp पता है आपको, F/2 + 1 into Cp का वैल्यू याद है ना आपको? R. हाँ, इट इज F/2 + 1 into R. अब नाइट्रोजन जो गैस है ना, वो है ना डायटोमिक है, और कभी भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होता है ना, तो इट इज ऑटोमेटिकली टेकन फॉर द ग्रांटेड दैट इट इज अ रिजिड रोटेटर. अगर व्हेनेवर नॉट स्पेसिफाइड तो वो आपको ये ले लेना है, रिजिड रोटेटर. तो क्या देना पड़ेगा? F का वैल्यू 5. 5/2 + 1 मतलब 7/2 R लिख दूं, डेल्टा टी. चलो अब मास कितना है भैया? तो बोले 2 × 10⁻² kg है. उसका मोलिकुलर मास कितना होगा? N2 गैस है, देखो दिया हुआ है, वैसे दिया हुआ है 28 नहीं चलेगा, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया, बिकॉज ये केजी में है. ओके, 7/2 R का वैल्यू आपको पता होगा 8.30, एक्चुअली 8.31 है, बट यहाँ पे 8.3 दिया हुआ है, चलेगा. डेल्टा टी आपको दिया है 45 सेल्सियस, चाहे वो 45 केल्विन ही ना ले लो, सही है, दोनों सेम ही होगा. इज इट क्लियर? तो यू जस्ट पुट द calculate by calculator, you get the answer. चलेगा? Is it okay? Yes sir. Yes sir. तो this is the end of the numerical. Simple है बात समझ में फ्रेंड्स? Yes sir. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो होगा उसमें ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. अब थोड़े थ्योरी बाकी है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत कम है, इलस्ट्रेशंस तो है ही नहीं. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. इसका वीडियो लेक्चर भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ एप्लीकेशन के अंदर, नोट्स भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स? और सर वो स्क्रीनशॉट. हाँ सर, स्क्रीनशॉट. हाँ, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ. और सर फ्रेंड्स मुझे वो थियरी की नोट्स भी दे देना. मैं आपको ये पूरा नोट्स मतलब न्यूमेरिकल के साथ थियरी का वापस से एक बार पूरा दे देता हूँ. ओके ओके Yes. Okay. ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू, Bye sir. Sir, बाय बाय बाय.